Okay, so good evening, everyone. It's almost a month since we last met. So I hope everybody had a wonderful Diwali and safe Diwali. And today we are back again with the webinar. This time as last time we had mentioned in our program, we were thinking of doing a program specifically keeping the 70s and 1972 year in mind. So we just modified it a little bit and we have incorporated 1972 and 73 as well in today's program. So and today Ankush Dada will be leading the program. I will present a couple of songs, but mainly it will be Ankush Dada who will be presenting the songs. Mainly because I thought that this is a theme is very close to his heart, and he's the best person to, you know, demonstrate and a better person to elaborate on this theme. Anyways, so without wasting much time, let's begin our today evening's program with acknowledgements and introduction about the Adbhut Pancham Foundation. So, as you know, we are on YouTube, Facebook, WhatsApp, everywhere. And you can subscribe to our YouTube channel where we have all these webinars that we have been conducting so far are all uploaded on our YouTube channel. So, if you want to revisit the previous webinars also, you can visit through our YouTube channel. Acknowledgements to Ankush Jadhav, who is here with us today, as like always, and to also all the members of the group who have always been supporting and inspiring us, and all the core group members also who have been always supporting us and helping us to conduct this program successfully. Without their support, this Quiet, won't be please. Quiet, possible. quiet, 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 quiet. बासुदा ट्यून कीजिए मनोनी स्टार्ट दीजिए Ready? One, two, one, two, three, four. मारुति स्टार्ट दे Ready? One, two, three, four. शुरू करें So that was the signature voice of Panchamda. This was in 1972, but the first time he used such kind of voice, I think it was in 1917, The Train. And I'm sure people I was not even born then, but those who were there in 70s would have never heard something like this. I mean, in Hollywood and Western music, probably it was, but nothing like this in the Hindi film music. So, and what a start, what a voice it was. So let's begin. I'll present the first song for the evening, and then I will hand it over to Ankush Dada, and will come back for a couple of songs later in the evening. So the first song that we are going to play today, of course, we have selected songs from the year 1972 and 73. We will be starting with 72, and as all you all know, 70s was a decade where Panchamda, I think, ruled the Hindi film music industry. I mean, he still rules, but 70s was a particular decade where there was no stopping. And the particular year 72, 73, which we have selected, had some of the most exciting, happening, iconic, whatever you called, songs in these 2 years. Fantastic music. And it was like whatever he touched, he turned it into gold. That was the kind of decade Panchamda was having. So the first song of 1972, what we are playing, is from Do Chor. This is a very sweet duet by Kishore and Lataji, one of my favorites. And the use of Santur in this song is what I like very much. And also the lyrics, the way the lyrics also mentioned about this is the film is about Do Chor, and lyrics talk about
Dil Ki Chori Karna, the way at some parts Kishore Das sung actually feels like he's about to go for a chori. Using his whispering voice very cleverly in the song. So let's listen to this beautiful duet from Do Chor. हे हे काली पलक तेरी गोरी खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी काली पलक पिया मोरी ओ खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी काली पलक पिया मोरी की बांध के पायल होठ दबाए बदन को चुराए नाजुक कमर से लगाए अदा की कटारी जालिमा घेरे की धीरे धीरे मेरे गले पर ये बाहों के खंजर चाहे कि दिल मेरा लेकर समझ के अनाड़ी बालमा रोज रात को वही बांधेगी लटों की डोरी हो डोरी काली पलक तेरी गोरी ओ खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी काली पलक पिया मोरी. So that was the very sweet and beautiful song from Do Chor. And with that, I hand it over the virtual platform to Ankush Dada. Ankush Dada, please take over and you can continue. Yes. Good evening, friends. I think we are talking about 72, 73, my favorite years of Pancham and his music. Why 72, 73 is the question that many people ask me. Main thing is like this कि 72 में पंचम में 97 गाने बनाए थे 97 and in 73 115 songs. So if you total up in these 2 years he made 112 songs. So 112 songs barring the Sundays in 600 days, that is one song every third day. What a record. Every third day he is recording one song, and out of all these 112 songs, I think 90 to 100 songs are super hit, and we are going to see few of them. Maybe one or two may not be super hits, but they are so unusual songs that you hardly get to hear. We at different groups of Pancham, we of course know, but there are so many people, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, they are joining for the first time, they don't know all the songs of Pancham, so we thought कि Pancham का ये काम भी उनके सामने आना चाहिए. Okay, so starting with 72, we start with रामपुर का लक्ष्मण 1972 का एक आइकॉनिक मूवी, शत्रुघ्न सिन्हा, रणधीर कपूर and Rekha. Now, in this particular song, there are so many beauties. The beauties are the dialogues of Kishore and Lata ji. I'm talking about a song, Gum Hai Kisi Ke Pyar Mein. This, surprisingly, the director was Manmohan Desai and Majroo Saab ne gaane likhe the. You can hear a triangle, which is very odd instrument for Pancham. Jada sunai nahi deta, but if you see, वो टाइमिंग थोड़ा अलग है उसका. एंड नेचुरली हिज फेमस इंस्ट्रूमेंट डुगी एंड रेसो आर आल्सो देयर. आई हैव
Doogie in front of me. I think you can see it. So I will try to, accompany along with it. So Himanshu, you can start. हाँ, क्या कहा? गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। कुछ लिखा? हाँ। क्या लिखा? ओ गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। अच्छा, आगे क्या लिखूं? आगे सोचा है एक दिन मैं उससे मिल के कह डालूं अपने सब हाल दिल के, और कर दूं जीवन उसके हवाले, फिर छोड़ दे चाहे अपना बना ले। मैं तो उसका रे हुआ दीवाना, अब तो जैसा भी मेरा हो अंजाम। ओ गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। This was perfect Pancham. Why I'm saying? Because the whole song goes after beat. हर गाना, पूरा गाना आफ्टर बीट में चलता है. Sometimes it comes on beat, sometimes it goes on. And this only Pancham can do it. I am sure Pancham के सिवा किसी ने ट्राई भी नहीं. जैसे गुम है किसी के प्यार में दिन सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं. So this after beat effect जो गाने में एक मजा देता है. There was a movie also in 1972 called Double Cross. Vijay Anand ka double role. Maybe commercially this movie was not so super hit those days. Bogi Anand का डायरेक्शन किया हुआ एक मूवी था. इसमें एक गाना था. 1972 is also a year when Bhupendra under R.D. Burman got a chance to sing so many songs, and later on he became very popular as a singer. So ये गाने में ऐसा है कि they are going on a cycle, two brothers who are twins, they are going on a cycle पे जा रहे. गाने में एक चीज मार्क करने जैसी है, that was the bass guitar. 1972 में चरणजीत सिंह जी was playing bass guitar. गाने में अभी मतलब without any big sound system, you can feel the bass guitar. There are two trumpets, there are bass guitars, and two singers, Kishore Da and Bhupi ji. Song is excellent, maybe commercially not so excellent, but must listen to this bass guitar. देखो हम दोनों की
यारी क्या कहना, जीवन से भी प्यारी क्या कहना, जीते मरते संग रहना। देखो हम दोनों की यारी क्या कहना, जीवन से भी प्यारी क्या कहना, जीते मरते संग रहना। देखो हम दोनों की यारी क्या कहना। जग में जब से है हम मत वाले, एक जिगर है एक दिल वाले, दो है नाम तो है क्या, दो है काम तो है क्या। जब तक तू है मेरी राहों में, तेरा ही बल है इन बाहों में, टूटे भी जो ये हाथ टूटे ना अपना साथ। देखो हम दोनों की यारी क्या कहना, जीवन से भी प्यारी क्या कहना, जीते मरते संग रहना। 72 was the year when Amitabh was trying to come in the movies. He was trying as a hero, but he was not successful. In fact, he was a flop hero those days. After Bombay to Goa, he could not do much for next 4-5 movies. There was a movie called Sanjog. Sanjog एक नाम की फिल्म आई थी 1972 में फिर से। आनंद बख्शी साहब ने गाने लिखे थे। फिल्म की हीरोइन थी माला सिन्हा, who was also aging those days, unfortunately. जेमिनी की मूवी थी ये, एस.एस. बालन, साउथ की इन शॉर्ट। एस.एस. बालन वाज द डायरेक्टर। गाना था रूप ये तेरा किसने बनाया। किशोर दा ने क्या जबरदस्त गाया है। इट्स अ परफेक्ट मेलोडी, बट व्हाट आई वांट आल्सो यू टू रियलाइज एंड अंडरस्टैंड थ्रू आउट द शो इज द संतूर का सपोर्ट। जैसे हिमांशु ने कहा था कि फर्स्ट सॉन्ग में भी संतूर इतना ब्यूटीफुल था, ये गाने में खास करके आप संतूर देखिए, संतूर एंड फ्लूट, बिकॉज हरिप्रसाद चौरसिया एंड शिव कुमार जी वेर ऑलवेज विथ हिम ऑल द टाइम टू सपोर्ट ऑन दिस। संतूर इतना ब्यूटीफुल है कि I didn't know where to cut the song, but let's listen to such a beautiful song of Kishore Da from Sanjog. रूप ये तेरा जिसने बनाया वो कहीं मिल जाए तो हाथ चूम लूं, कहीं मिल जाए तो हाथ चूम लूं। रंग ये तेरा जिसने सजाया वो कहीं मिल जाए तो हाथ चूम लूं। रूप ये तेरा कारी कारी रतिया से काजल चुराया, तेरी प्यारी प्यारी अखियों में लगाया। हा 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 हा। मुख पे सवेरा जिसने सजाया वो कहीं मिल जाए तो हाथ चूम लूं। रूप ये तेरा
such a beautiful santoor. I really wanted to continue that santoor for a long time, but we have a time limit. So this was that magical 72. एक मूवी आई थी राखी और हथकड़ी. Once again, maybe not a very commercial super hit those days, but गाने सभी बहुत ही अच्छे थे. उसमें एक गाना है, पंचम showed that a love song can be in a sad tone. ये मैंने गुलजार साहब से भी पूछा था पंचम मैजिक में कि ऐसा क्यों होता है. इससे गुलजार साहब ने कहा पंचम मैजिक के शो में कि व्हाट इज लव. लव इज सैडनेस. बोलते यू नेवर से हे आई लव यू. नो, आई लव यू. इट्स totally a sadness in your voice, and this particular phrase has been caught by Pancham in this particular song. आशा जी और किशोर का गाना है. Look at the sadness of the, बहुत सा ऐसे मतलब एक sadness feel होता है उसमें, but it's a love song. So once again with Duggi, it was done fantastically. So let's listen to this song of Majid Sultanpuri Sahab in 1972. अच्छी नहीं सनम दिल लगी दिले बेकरार से. सनम दिल लगी दिले बेकरार से. क्यों रो रहे हो, छेड़ा था हमने तुमको तो प्यार से. खेल ही खेल में जाएगी एक जान. क्यों रो रहे हो, छेड़ा था हमने तुमको तो प्यार से. अच्छी नहीं सनम दिल लगी दिले बेकरार से. प्यार के खेल में कैसा दिल क्या जान. अच्छी नहीं सनम दिल लगी दिले बेकरार से. कहते हो तुम तो यूं ही सही के मेरे हंसी. सारी खता जवानी की है, कसूर आपका नहीं. कहते हो तुम तो यूं ही सही के मेरे हंसी. सारी खता जवानी की है, कसूर आपका नहीं. कर जाते हो शरारत जब मिलते हो प्यार से. क्यों रो रहे हो, छेड़ा था हमने तुमको तो प्यार से. अच्छी नहीं सनम दिल लगी दिले बेकरार से. So that was such a beautiful love song, and Pancham knew the speed of the song has to be slow. अगर किसी की छेड़खानी करनी है तो फास्ट सॉन्ग है. अगर पूरे आपके इमोशंस अगर बाहर लाने हैं तो इट हैज टू बी स्लो. एंड दिस इज व्हाट पंचम हैज आल्सो टॉट अस, अ न्यू थॉट फॉर नेक्स्ट शो. ओके, सीता और गीता. और एक जीपी सिप्पी साहब की फिल्म बिफोर शोले वाज सीता और गीता. रमेश सिप्पी साहब ने डायरेक्ट किया था, आनंद बख्शी साहब ने गाने लिखे थे. इसमें बहुत सारी चीज है. आई एम टॉकिंग अबाउट सॉन्ग ओ साथी चल. इसमें एक एको का इफेक्ट है. जब किशोर कहता है ओ साथी चल, तो दैट कंटिन्यूज फॉर ऑलमोस्ट 4 बार. तो ये टेक्नोलॉजी यूज की थी विद एको लाइट करके एक मशीन था. सो किशोर ने छोड़ दिया दैट एको लाइट कंटिन्यूज ऑन दैट. सेम इज विद आशा जी ऑल्सो. आशा जी तो ओवरलैप किया है विद एको लाइट. आज सब मेरे दोस्तों को एक बहुत बड़ी चीज मैं दिखाना चाहता हूं. आई हैव गॉट अ डुक्की which was played in this particular song, which actually belonged to Kawasaka
which was presented to me by Homi Mullah Sahab. So it's a big one, very big one, big duggi. यही टोन आपको ये गाने में मिलेगा. I will try to play for first few bars and then I will leave it so that you can hear to the original tone. But यही डुग्गी यूज की थी. I have written also somewhere down. It was presented by Kawas Kaka, and this was also played in many of the other songs of 70s. तो इसका टोन भी सुनेंगे and also try to understand how that वो साथी चल के बाद में जो एको किया था, that also will try to understand. Third small thing is, जैसे अंतरा शुरू होता है, he gives the start, again stops, again gives. ये क्या उनका पंचम का क्या समझ, sometimes you don't understand. So he starts and stops and again starts. So let's listen to this. O Saathi Chal. हवा के साथ साथ, अरे रे, घटा के संग संग, संभलना. हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल, मुझे के साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल. एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला, ला ला ला. एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, पे अपना दिल भी है दीवाना, पर्वत पे आके ना टकरा जाना, तू बन के बादल, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल. So now you must have marked कि वो चल कितना देर चल रहा है. जैसा पहले भी कहा था कि 1972 also gave us one more gem of the industry, that was Bhupendra. Bhupendra as a singer, Bhupendra as a guitarist was always there since 69, 67. But as a singer, of course, he first sang in Hakikat. होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, was his first song under Madan Mohan. But as a full-fledged singer, he was tried in पहले तो Double Cross में 1972, and then also in this movie called Parichai. Parichai में जो गाना है, which was also award-winning song, बीती ना बिताई, गुलजार साहब का लिखा हुआ, गुलजार साहब का डायरेक्ट किया हुआ मूवी है. ये गाना राग यमन कल्याण पे बेस्ड है. Such a beauty. Lata ji at her best. Bhupi ji was also too good in this particular song. So let's listen to this यमन कल्याण, जो अभी perfect time हुआ है यमन कल्याण के लिए, for in India of course. So let's start with this बीती ना बिताई. बीती ना बिताई रैना, फिर हाथी जाए रैना, भीगी हुई आँखें
अखियों में रात नाई रहना, बीती ना बीताई रहना। जैसे कि पहले भी मैंने कहा था एक गाने के बारे में कि द लव सॉन्ग हैज लॉट ऑफ सैडनेस. Pancham also showed that party song can also be sad. Party song also can be sad. Mere Jeevan Sathi, another super hit film of R.D. Burman in 1972. Now, this particular song, Deewana Leke Aaya Hai, which was by Kishore Da, इसके प्रोड्यूसर विनोद शाह एंड हरीश शाह थे. मजरू साहब ने गाने लिखे थे. पंचम मैजिक के शो में जब आए थे विनोद शाह, तभी बात बहुत हुई थी ये गाने के बारे में. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर सॉन्ग. इट इज अ पार्टी मूड सॉन्ग. राजेश खन्ना हैज बीन आस्क्ड टू सिंग, बट ही इज सैड, सो देयर इज अ सैड टोन. इट हैज टू बी अ पार्टी, इट हैज टू बी अ सैड टोन, एज वेल एज देयर आर सम मेमोरीज ऑफ हिज अर्लियर डेज. सो वो भी लाना है. हमने आजकल बहुत बार देखा है कि वही दीदी तेरा देवर का वो म्यूजिक इसमें आता है उसमें आता है. ये पंचम से सीखा है बहुत लोगों ने. 1972 में पंचम ने करके दिखाया था कि एक ही गाने में 2-3 गाने का याद आ सकता है उसको. सो विल लिसन टू दिस. आई हैव पर्पसली मेड सेकंड एंड थर्ड एज द फर्स्ट वन बिकॉज आई लव दिस पर्टिकुलर म्यूजिक. And also, Mark, for the people who are technical on this or musical ears, will also understand that there are 3 notes by which Pancham shifts the whole chord. That particular part you must listen and try to understand this. So let's listen to this Deewana Leke Aaya. दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना. देखो कहीं यारो ठुकरा न देना मेरा नजराना. दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना. ख्वाब अधूरे कौन अब गिने कितने, हाय सच तो ये है मेरे दोस्त के सपने भी है मेरे अपने. हो उसकी खुशी अब मेरी खुशी है दिल दीवाना. दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना. उसमें 1972 में there was also a movie which was absolute flop,
but what Pancham created is the history. फिल्म का नाम था गोमती के किनारे. सावन कुमार टाक साहब की ये फिल्म थी. मजरूर साहब ने गाने लिखे थे. सावन कुमार टाक ने ही उनका डायरेक्शन भी किया था फिल्म का. आई रिमेम्बर बॉम्बे में वो नाज में लगी थी, 4 दिन में पिक्चर उतर गई थी. इट वॉज पॉसिबली द लास्ट मूवी ऑफ मीना कुमारी. कुछ भी चली नहीं थी फिल्म. समीर वॉज द हीरो. बट इसमें एक गाना है. ये गाने की स्पेशलिटी ऐसे कि पंचम एज अ व्हाट यू कैन से एज अ साइंटिस्ट और पंचम एज ग्रेट एक पर्सन ऐसा है कि 2 अलग अलग गाने उसने पेस्ट किए हुए. ये 2 अलग गाने हैं. When Asha ji sings, Kishore sings something different. When Kishore sings, Asha sticks to her own style. अंतरे में भी वही होता है कि there are too many places where chorus also comes into picture and tries to match up these 2 things. So let's listen to this. Aao Aao Jane Ja. Only Pancham can think of this such thing. Emotion. अजी आप लोग भी गाइए ना. क्या जानू तुम बिन थी, क्या दिल को बेकरारी. महफिल की दीवानी से तुम्हारी. चैन आया जब देखी ये सूरत प्यारी प्यारी. आओ आ जाने जहां, आओ आ जाने जहां. दिल ने ढूंढा तुम्हें कहाँ कहाँ. आओ हम भी आए हैं बाहों के हार लेके. होठों पे एक नगमा, आंखों में प्यार लेके. इस दिल के शीशे में तस्वीरें यार लेके. आओ आओ जाने जहां दिल ने किया तुम्हें कहाँ कहाँ. आओ आओ जाने जहां. So only Pancham can think of such thing, and only Kishore and Asha ji can execute something like this. This was too good. अब एक गाने के बारे में, गाने का एक हिस्ट्री या उस गाने का नसीब बोल सकते हैं हम. ये जो भी इंफॉर्मेशन है बहुत लोगों से बात करने के बाद में मैं आपके पास पहुंचा रहा हूं. पंचम की सबसे पहली फिल्म तो आप सबको पता है, राज was the film which was गुरुदत्त प्रोडक्शन. गुरुदत्त ने पहले फिल्म दी थी वो जो कभी कंप्लीट ही नहीं हुई थी. 4 सॉन्ग्स रिकॉर्ड हुए थे उसके. Now, many people think Guru Dutt must be a Bengali. He was not a Bengali person. He was a Karwari person from Karwar, Goa Karwar. Padukone was his surname. So he had always that thing in mind. थोड़ा गोवन स्टाइल का या कारवार स्टाइल का एक गाना बना के रखते हैं. एक गाना बनाया था जो रिकॉर्ड भी हुआ था ऐसा सुना है मैंने. There is no evidence for that. But फिल्म नहीं चली तो most of the songs of that film Raj were used in छोटे नवाब. एक गाना बचा था
जो उन्होंने बॉम्बे टू गोवा में यूज करने की सोची थी। तो बॉम्बे टू गोवा के लिए रिकॉर्ड हुआ, रिकॉर्ड पे है बट फिल्म में नहीं है। वंस अगेन द सॉन्ग हैज गॉन आउट ऑफ एवरीबडीज माइंड, क्योंकि वो पिक्चर में नहीं है। बिकॉज देयर वाज अनदर सॉन्ग, दिल तेरा है हम भी तेरे ही है सनम, that song was very similar to this particular song, but this is the perfect Goan tune, absolutely perfect Goan tune. इतना ब्यूटीफुल गाना है लता जी और किशोर का, तुम मेरी जिंदगी, इतना ब्यूटीफुल है। देयर आर सो मेनी सिमिलर सॉन्ग्स व्हिच हैव कम लेटर ऑन, बट ये गाने का नसीब ऐसा है कि राज में भी नहीं आया, बॉम्बे टू गोवा में से भी बाहर गया, बट गाना तो सुनिए, ब्यूटीफुल सॉन्ग। सच हो के मुस्कुराए, तुम मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह से आए, भूला सा ख्वाब जैसे सच हो के मुस्कुराए। सफर की कभी मंजिल न आने पाए, तुम मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह से आए, भूला सा ख्वाब जैसे सच हो के मुस्कुराए। Such a beautiful song, but क्या नसीब था गाने का। अपना देश, अनदर फिल्म, एक और ब्यूटीफुल मूवी अपना देश, जिसके गाने सभी सुपर हिट हुए थे, फिल्म भी सुपर हिट हुई थी। राजेश खन्ना, मुमताज वाज द पेयर। इसमें सभी गाने अच्छे हैं, एक गाना तो इमोशन लगाया था, दुनिया में लोगों का स्टार्ट। बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ सॉन्ग कजरा लगा के, such a beautiful melody and love song. अब ये गाने के बारे में एक दुबे जी से बात हो रही थी, the player who used to play ढोलक for, तो ये गाने में ढोलक के साथ साथ ढोलकी भी बजी है, जो नाल बोलते हैं जिसको हिंदी में, या महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर है ढोलकी। एंड ढोलकी बोलेंगे तो वी ऑलवेज रिमेम्बर तमाशा तमाशा में ढोलकी यूज होती है। ये गाने का जो रिदम पैटर्न है वो एग्जैक्टली तमाशा का है, तो दैट पर्टिकुलर टोन ये मारुति राव ने इंडस्ट्री को दिया है। सो दिस वाज द सॉन्ग जहां से ये ढोलकी का जो रिदम पैटर्न जो बना है, मराठी टिपिकल लावणी का जो ढोलकी है, वो ये गाने में है। अब जब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ढोलकी लावणी स्टाइल है, नाउ यू विल रियलाइज कि पीछे क्या चल रहा है, हमने कभी पीछे सुना ही नहीं था। ये दुबे जी ने मुझे बताया था। तो वंस अगेन ब्यूटीफुल, मतलब द ग्रेटेस्ट संतूर प्लेड बाय शिव कुमार जी इन दिस पर्टिकुलर सॉन्ग, बिकॉज और शुरू में जो घुंघरू बजते, तो घुंघरू नहीं, वो पायल है। सो पंचम ऑलवेज ट्राई टू मेक दैट डिफरेंस बिटवीन घुंघरू एंड पायल। तो इसमें पायल आती है शुरू में, और उसका बहुत हाई पिच टोन है, बहुत नाजुक सा टोन है। तो एंड पंचम कैन नॉट रेजिस्ट रेसो रेसो इन दिस पर्टिकुलर सॉन्ग। तो देखते हैं, चलिए।
कजरा लगा के गजरा सजा के, कजरा लगा के गजरा सजा के, बिजुरी गिरा के जइयो ना। नैन मिला के चैन चुरा के, निंदिया उड़ा के जइयो ना। गजरा लगा के गजरा सजा के, बिजुरी गिरा के जइयो ना। नैन मिला के चैन चुरा के, निंदिया उड़ा के जइयो ना। गजरा गजरा मुखड़ा न देखो दर्पण में, झांको जरा मेरे मन में। मुखड़ा न देखो मुखड़ा न देखो दर्पण में, झांको जरा मेरे मन में। ऐसे दिया पे छाई हो जैसे घटाएं सावन में। रात और दिन तुम्हारे बिन मन में और कौन है। अब जिद छोड़ो न आगे आगे दौड़ो, दिल ना मेरा तोड़ो। घुंघटा गिरा के मुखड़ा छुपा के, बिजुरी गिरा के जइयो ना। नैन मिला के चैन चुरा के, निंदिया उड़ा के जइयो ना। गजरा गजरा। So this Ankushada, was, yes, yes. just one thing, as you said, संतूर बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये गाना एक्चुअली बारिश का गाना है, मीन्स पिक्चराइजेशन में बारिश है, Correct. बट किधर भी लिरिक्स में भी इट्स नॉट मेंशन बाय आनंद बख्शी, इट इज द रेन सॉन्ग, इट इज ओनली द संतूर Yeah, that that creates creates that the effect. atmosphere of rain. Perfect, no doubt. So, Shiv Kumar ji, hats off. You have done great work for Pancham. 1972 का अगला गाना है naturally a super hit film called जवानी दीवानी. जवानी दीवानी के सभी गाने हिट है, so and हमने बहुत सारे सुने भी है. तो इसमें एक गाना था which was a sensuous song, नहीं नहीं अभी करो इंतजार. पंचम had a habit कि पहले वो बंगाली में ट्राई मारते थे और गाना वहां पे अच्छा लगा, देन ही यूज्ड टू ब्रिंग इट बैक टू हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. तो सेम वे दिस वाज अ पूजा सॉन्ग. दुर्गा पूजा के समय जब ऑल द म्यूजिक डायरेक्टर्स कम आउट विद देयर प्राइवेट सॉन्ग्स, तो चौकी चौकी कोता बोलो वाज अ सॉन्ग व्हिच वाज sung by आशा जी in just same year or 1 year before. So that song was then used in this movie जवानी दीवानी. So जवानी दीवानी जब शुरू हो जाएगा, पहले हम लोग सुनेंगे, we'll listen to the Bengali original and then bass guitar को मार्क कीजिए. इसमें इतना beautiful bass guitar है. Once again Charanjit Singh ji was at his best during those days. And at the last अंतर में स्केल चेंज भी होता है गाने में, एंड देन गाना हाफ नोट से ऊपर जाके वहीं पे रह जाता है. ऑफ कोर्स वी हैव अ टाइम लिमिट, सो आई हैव ट्राइड टू यूज बोथ द थिंग्स द बेस्ट फॉर यू. चलिए सुनते हैं. চোখে চোখে কথা বলো, মুখে কিছু বলো না, মন নিয়ে খেলা করো, একই ছলনা. চোখে চোখে কথা বলো, মুখে কিছু বলো না, মন নিয়ে খেলা করো, একই ছলনা. नहीं नहीं अभी करो
नहीं नहीं कभी नहीं मैं हूँ बेकरार। La 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 la। बड़े वो हो तुम पिया, जिद क्यों नहीं छोड़ते हो। बड़े वो हो तुम पिया, जिद क्यों नहीं छोड़ते हो। कलियों को खिलने से पहले नहीं तोड़ते। ना नहीं नहीं कभी नहीं चली जाएगी बहार। नहीं नहीं कभी नहीं थोड़ा इंतजार। हे नाना आ नाना नहीं नहीं अभी नहीं, अभी करो इंतजार। नहीं नहीं कभी नहीं मैं हूँ बेकरार। So, Shankar Narayan has written what a difference in the music for Bengali and Hindi version. Hindi versions had bigger budgets, is my answer to this particular question. Bengalis may just hardly 5, 6 or 8 musicians, whereas in Hindi you have a full 40, 50 people. पंचम एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर है जिसने अपने एक पर्टिकुलर स्टाइल बना के रखी थी। बहुत सारे स्टाइल्स है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि पंचम स्टाइल है ये। एक पर्टिकुलर स्टाइल जो कोई म्यूजिक डायरेक्टर हिंदी फिल्म में कॉपी नहीं कर सका, दैट वाज फर्स्ट इंटरल्यूड म्यूजिक है ही नहीं बहुत सारे गाने। देयर इज नथिंग कॉल्ड M1 और जो म्यूजिक 1 जो होता है वो है नहीं। डायरेक्टली मुखड़े के बाद में अंतरा, इट डायरेक्टली गोज ऑन एंड दिस इज particularly only and only Pancham. The next song is from 73 Samadhi. समाधि के भी बहुत सारे अच्छे गाने हैं। एक गाना जो था किशोर दा का, आई थिंक इट इज द फास्टेस्ट हिंदी सॉन्ग विच आई हैव हर्ड, जाने जाना जाओ कल फिर आना। What a guitar, what a guitar in this particular. There are 3 guitars which are being played continuously in a loop, continuous वो पीछे है, and Pancham sitting on a console is trying to, adjust. जब किशोर दा आते थोड़ा उनको कम करो, फिर आगे करो, पीछे करो. I can see, visualize what Pancham must be doing or going through this. गाना इतना फास्ट है कि मतलब it has to be fast, because पहले भी मैंने कहा था love songs are very slow, but this is लड़की का पीछा करते तो it has to be fast and it is in the car. So he has taken this particular गिटार के लूप्स, देखिए क्या है, कितना ब्यूटीफुल गिटार बजता है. So let's listen to समाधि, जाने जाना जाओ कल फिर आना. जाने जाना जाओ कल फिर आना, यूं ही किसी मोड़ पे मिल जाना. जाने जाना जाओ कल फिर आना, यूं ही किसी मोड़ पे मिल जाना. अब याद रखना राह ये दिल पर टूटा है इस पे तुमने बहार में, कल तक यहीं पर आंख बिछाए बैठा रहूंगा,
कल, दिल रहा है मचल, बाकी बातें होंगी कल, अभी क्या कहूँ जाने जाना, जाओ कल फिर आना, यूं ही किसी मोड़ पे मिल जाना। Once again, 72 का एक और एक ब्यूटीफुल गाना हम सुनने जा रहे हैं, माय फेवरेट सॉन्ग। फिल्म थी हीरा पन्ना, देवानंद, जीनत अमान एंड राखी, और राखी और देवानंद पे गाना फिल्माया गया था, बहुत दूर मुझे चले जाना है। भज्जी जी का वाइब्रोफोन इज सो सूदिंग टू ईयर्स एंड द सॉन्ग इज इन बोसोनोवा रिदम पैटर्न। पंचम ने कभी गैप्स, जैसे कि पहले के म्यूजिक डायरेक्टर्स थे जैसे शंकर जयकिशन है, वो गैप्स नहीं छोड़ते थे, वहां पे कुछ वॉलिन आता था, अकॉर्डियन आता, कुछ आता था, बट पंचम हैड टू बी डिफरेंट, पंचम को कुछ अलग करना था। तो जब भी ये गाना मिलता है उसमें गैप मिलते हैं, तो ही विल पुट अ नेचुरल साउंड, जैसे हमने देखा चुपके चुपे, ये साउंड था बहुत सारे गाने में। इसमें एक साउंड है, वो सांस लेने इस तरह से साउंड है। अब इसका क्या यूज हुआ है पिक्चर में इज अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर, बट ये गाने का ये जो टोन है वो भी मार्क करने लायक है कि ऐसा भी सोच सकता है एक म्यूजिक डायरेक्टर की, एक ये कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं, ना कोई फ्रेज है, जस्ट एक इस तरह से आवाज करना क्या है। लेट्स लिसन टू दिस साउंड आल्सो एंड दिस ब्यूटीफुल मेलोडी ऑफ हीरा पन्ना। बहुत दूर मुझे चले जाना है, बहुत नजदीक मुझे आना है, तेरी बाहों में मुझे आज मर जाना है। बहुत दूर मुझे चले जाना है, बहुत नजदीक मुझे आना है, तेरी बाहों में मुझे आज मर जाना है। किसी को इस जगह पे नहीं आना है, किसी को इस जगह से नहीं जाना है, तेरी बाहों में मुझे आज मर जाना है। जाने मिले या न मिले फिर ऐसी तन्हाई, दिल की लगी लेने लगी सीने में अंगड़ाई। मुझको छुपा ले, दिल में बसा ले, देख बुराई जमाना है। किसी को इस जगह पे नहीं आना है, किसी को इस जगह से नहीं जाना है, ओ तेरी बाहों में मुझे आज मर जाना है। So you heard that natural sound. Now next two songs I'll request Himanshu because that is his forte. So I have asked him to take next two songs. So over to you, Himanshu. Thank you, Ankush Dada. I will, as Ankush Dada mentioned, I will just present next two songs. And again, Ankush Dada will be back because I'm also enjoying as much everybody, I'm sure everybody is enjoying listening to Ankush Dada. It's always great and you get to learn a lot of things. So, अगला गाना जो we are going to present is from the film झील के उस पार.
इसमें तो काफ़ी सारे सुपर हिट गाने थे, बंगले के पीछे, दो घूँट मुझे भी पिला दे शराबी, सुपर्ब सॉन्ग्स। लेकिन हमने जो गाना सिलेक्ट किया है, दिस सॉन्ग इज़ अ डुएट। ओके, एम आई क्लियर नाउ? दिस सॉन्ग इज़ अ किशोर दा सॉन्ग फ्रॉम झील के उस पार। इस गाने को मैंने फर्स्ट टाइम सुना था समवेयर इन द 90s, इफ आई एम आई रिमेम्बर करेक्टली। समवेयर इन 90s इस गाने को सुना था मैंने। कभी ये फिल्म तब भी देखी भी नहीं थी, कभी गाना भी देखा नहीं था। बट लिसनिंग टू द सॉन्ग आई कुड, एक चीज़ मतलब मैं समझ गया कि गाना ओपन लोकेशन में शूट हुआ है, शायद आजू-बाजू में सराउंडेड बाय माउंटेन्स वगैरह होगा। आई वाज़ नॉट क्लियर, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन था, मैंने पिक्चर देखी नहीं थी। और ये गाना मुझे बहुत पसंद था तभी भी, आज भी। कई साल बाद में जब मैंने इसका वीडियो देखा, तो देखा कि आई वाज़ राइट। द सॉन्ग इज़ एक्चुअली पिक्चराइज्ड इन अ ओपन लोकेशन सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड ऑल। अब दिस इज़ अ स्पेशलिटी ऑफ पंचम दा कि उनके म्यूज़िक से एटमॉस्फेयर क्रिएट होता था। एंड स्पेशली जो एको साउंड इसमें यूज़ किया है उन्होंने, ये एको साउंड से एक्चुअली मालूम पड़ता है कि ये गाना किधर ओपन वादियों में है। एंड इन मेनी सच सॉन्ग्स Pancham Da has used this echo effect beautifully to just establish the location of the picturization of song. Just like in this particular song, we'll listen to this beautiful song from Jheel Ke Us Par. क्या नजारे, क्या सितारे, सबको है इंतजार, सब है बेकरार, तू कब सब देखेगी। हर गली में, हर गली में देखेगी मेरा प्यार, प्यार की बहार, तू सब जब देखेगी। क्या नजारे, क्या सितारे, बादल अंबर पे यूं ही आता जाता रहेगा, तेरे रेशमी आंचल की तरह लहराता रहेगा। बादल अंबर पे यूं ही आता जाता रहेगा, तेरे रेशमी आंचल की तरह लहराता रहेगा। कदमों की धूल चूमेगी ये फूल, तू जब सब देखेगी। हर गली में, हर गली में देखेगी मेरा प्यार, प्यार की बहार, तू सब जब देखेगी। क्या नजारे, क्या सितारे। Okay, the next song that I'm going to present is the iconic song. ऐसा गाना उसके पहले उसके बाद कभी बना ही नहीं। फिल्म थी नमक हराम and the song was मैं शायर बदनाम. Now, इस गाने को I had written a blog also on this song. I always call this song as the song of successful failure. यानी एक शायर, एक पोएट की कहानी है ये गाना. Raza Murad had played that role of the poet. He has successfully failed in his life. सब कुछ कोशिश किया. He is a शायर. He has tried everything, put all his efforts to become a known poet. But
luck or fortune is not with him. He struggles throughout his life. Nothing happens, nothing works for him. He doesn't lose his hopes. वो कोशिश करते रहता है, but नहीं होता. And finally he is on his deathbed, where he finally lets go all his hopes. छोड़ देता है. He is like, कि that's it, I call it a day types feelings है उसकी. इतना इमोशनल है ये गाना. एंड किशोर दा ने जो गाया है, सी एक्चुअली दिस स्टोरी इज अबाउट रजा मुराद, बट गाना गा रहे पिक्चर में राजेश खन्ना. बट द कंपोजिशन एंड द सिंगिंग इज सच कि इट डजंट मैटर ऑन whom इट इज पिक्चराइज. इतना ब्यूटीफुल किशोर दा ने गाया है इसको. और जो फ्लूट का यूज है, वो फ्लूट में सारे इमोशंस आ जाते हैं इस गाने के. या और एक चीज यहाँ पे कीबोर्ड, I know few people here who play keyboard. I also play very amateurly. But इस गाने को जब मैं प्ले करता हूँ तो इसमें मैडी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शुद्ध और कोमल स्वर मतलब एक के पीछे एक, कि when I play this song on keyboard it is like मैं शायर बदनाम, it is like zigzag, और फिर हो मैं चला स्ट्रेट लाइन. दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन. मैं नहीं कह रहा हूँ यही सोचा होगा पंचमदा ने, बट व्हेन आई प्ले दिस सॉन्ग ऑन कीबोर्ड और ये सॉन्ग सिचुएशन देखता हूँ तो ये कंपोजिशन ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ द कार्डियोग्राम. वो रहता है ना, पेशेंट लास्ट आखिरी सांसें गिनता है हिंदी पिक्चर में, बाजू में कार्डियोग्राम चालू रहता है, वैसे कंपोजिशन है. एंड एक्चुअली रजा मुराद इज ऑन हिज डेड बेड एंड ही पासिस अवे ड्यूरिंग दिस सॉन्ग. तो दिस कंपोजिशन जिस तरह से कंपोज किया पंचमदा ने, किशोरदा की सिंगिंग एंड आनंद बख्शी's फैंटास्टिक लिरिक्स, कुछ अलग ही गाना है. एज आई सेड, ऐसा गाना पहले न बना न इसके बाद बना. एंड फ्लूट, प्लीज मार्क द फ्लूट ऑल्सो. लेट्स लिसन. मैं शायर बदनाम, मैं शायर बदनाम, हो मैं चला, मैं चला महफिल से नाकाम, हो मैं चला, मैं चला, मैं शायर बदनाम. तुमको कुछ सामान मिलेगा, दीवाने शायर का एक दीवान मिलेगा, और एक चीज मिलेगी, टूटा खाली जाम, हो चला, मैं चला, मैं शायर बदनाम. So that was Namak Haram, and Ankush Datta is back, and I'm asking him to unmute. Ankush Datta, unmute yourself. Before we move to the next song, एक क्वेश्चन है, एक्चुअली टू क्वेश्चंस है अंकुश दादा. बोलो. One is, you have been there during the 70s era, you have experienced the craziness, the excitement वो happening पूरा पंचमदा era था पूरा 70s में. So I wanted to know how was it
70s एक ही कंपोजर पूरा रूल कर रहा है इंडस्ट्री को. एंड सेकेंडली आई वांटेड टू नो व्हाट डू यू थिंक कि 70s में, एज यू सेड, रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर ऑफ सॉन्ग्स, रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर ऑफ फिल्म्स कर रहे थे पंचम दा. मतलब एज गुड एज एवरी अदर डे वाज रिकॉर्डिंग सम सॉन्ग और द अदर. प्लस वो अपने फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक भी इन्वॉल्व रहते थे, बैकग्राउंड स्कोर में, टाइटल म्यूजिक में भी इन्वॉल्व रहते थे. अपने पिताजी को, एच डी बर्मन को भी असिस्ट कर रहे थे. एंड ही वाज आल्सो डूइंग दुर्गा पूजा एल्बम्स. मतलब क्या खाते पीते नहीं थे, सोते नहीं थे क्या? मतलब हाउ वाज दिस पॉसिबल? उनका लाइफ वाज ओनली म्यूजिक. पंचम दा के लिए म्यूजिक से अच्छा और विटामिन कुछ मिल नहीं रहा था. एंड दैट वाज हिज विटामिन. सो ही वाज absolutely engrossed and he was into music. जो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. एक तो खुद के पिक्चर करो, खुद के गाने करो, और दादा बर्मन के भी गाने करो. So दादा बर्मन के भी अरेंज कर रहे थे. So as last time I had said, he had created two different teams, one for Dada Burman and one for himself. Right. Manohari Da and Basuda and Homida and all were here. On the Maruti Rao was here. The other side was Dada Burman's team was Shiv Kumar Sharma ji, Hari Prasad Chaurasia, and Amrut Kaka. Amrut Kaka was arranging rhythm there. So this kind of crazy life tha Pancham Da ka during those time. And matlab he was on the top. Nobody could even think of touching him. There were, of course, other music directors who were making number of films, but Pancham Da was giving super hits all the time. Thank you, Ankush Da. Over to you for the rest of the evening. Yeah. So Pancham Da ne bahut sare. It is not only giving a super hit; it is also trying something different, something new, something like लोगों को कुछ अलग देना है. जो एस डी बर्मन साहब ने भी किया था, पंचम ने भी किया है. गुलजार साहब ने एक बार उनसे एक अपना प्रोग्राम आता था, संगीत सरिता. उसमें एक पंचम दा और गुलजार साहब का एक डिस्कशन है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ. उसी साल एक फिल्म आई थी 73 में, बंदे हाथ. फिल्म बिल्कुल चली नहीं. इट इज द ओनली एंड ओनली फिल्म ऑफ अमिताभ बच्चन एंड मुमताज. ये फिल्म तभी चली नहीं थी, बट बाद में मैटिनी में हमने कम से कम 40 बार देखी होगी बंक करके. सो इसमें एक गाना था ओ माजी, दैट वाज आशा जी. बहुत अच्छे गाने हैं उसमें. बट ये गाने के बारे में गुलजार साहब क्या कहते हैं और पंचम उसको क्या रिप्लाई देता है इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. फोक म्यूजिक, फोक के कलर्स कहीं ना कहीं, और उसके बावजूद कि वो किसी भी ज़माने के हों या किसी भी इलाके के हों, वो फिल्म में आकर हर जगह के लिए मौजूद लगते हैं, सही लगते हैं, और फिर उसमें आज का पीरियड भी झलकता है. और आपने कुछ इस तरह की हरकतें बहुत ज़्यादा की हैं कि उसे मॉडर्नाइज भी किया है. एक जगह आपने बोट सॉन्ग, माझी के गाने, कैबरे सॉन्ग बनाया एक जगह. ये हरकतें मैं पिताजी से सीखी. पिताजी हमेशा बोला करते थे कि कोई भी कोई नयापन जो कहते हैं करना हो तो ये सब एक्सपेरिमेंट करते रहो. कि मॉडर्न कैबरे टाइप का गाना आप कीजिए, रोमांटिक गाने में दे दीजिए. नहीं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि देखिए कि मेलोडी उसी तरह से कायम है, वो सुर उसी तरह से कायम, वो खूबसूरती उसी तरह कायम है. सांसों में उठी पवन का शोर.
ने क्या खूब कहा था कि एक फोक सॉन्ग को आपने कैबरे सॉन्ग बना दिया विथ डिफरेंट कलर्स. तो दिस वाज पंचम हु वांटेड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट. उसको अलग अलग चीज करनी थी, करके दिखाई, सक्सेसफुली करके दिखाई. दिस वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट. एक मूवी है 73 की, राजा रानी. राजा रानी में सभी गाने, वंस अगेन बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने हैं इसमें. उसमें एक वंस अगेन एक डिफरेंट ट्राई था, जब अंधेरा होता है. तो ये गाने की बहुत सारी खूबियां है. पहले तो एक तो खूबी ये है कि उसका फिल्म वर्जन जो है वो अलग है, जो रिकॉर्ड पे है वो गाना अलग है. लास्ट टाइम एक बार इमोशन ने फिल्म वर्जन सुनाया था हमें, तो दिस इज द रिकॉर्ड वर्जन. इसमें भूपी जी हैज बीन यूज्ड लाइक ऑब्लिगाटोज ऑफ वायलिन्स या चेलो. उनके बेस के आवाज में एकदम, जो भूपी जी का आवाज ऐसा है कि उसे एग्जैक्ट वर्ड अगर मैं कहूँ, एग्जैक्ट वर्ड इज द स्मोकर्स वॉइस. जो स्मोकिंग करता है, हेवी स्मोकिंग करता है, उसका जो वॉइस होता है, वैसा भूपी जी का वॉइस है इसमें. तो जब अंधेरा होता है में भूपी जी कम्स एग्जैक्टली लाइक ऑब्लिगाटो, या फिर पीछे जैसे वॉयलिन्स बज रहे हैं उसी तरह से भूपी जी को यूज किया हुआ है. इसमें एक पिकअप जो है वो है तबले पे. इट्स अगेन अ वेस्टर्न टाइप ऑफ अ सॉन्ग, बट उसका पिकअप तबले पे है. तो ये जब गाना, ये स्टोरी मैंने पढ़ी है कि पंचम ने उनके गुरु जो थे तबले के, ब्रिजेन विश्वास साहब, उनको सुनाया था कि देखिए मैंने क्या किया. ब्रिजेन विश्वास जी ने इतना ब्यूटीफुल कहा है कि पंचम, ये कैसे बजाना है मैं जानता हूं, बट कहाँ बजाना है सिर्फ तू जानता है. And that was a great comment by ब्रिजेन विश्वास साहब. इसके शुरू में एक अलग सा साउंड है जो बाद में शोले में भी यूज होता है बहुत बार. वो इंस्ट्रूमेंट मुझे फॉर्चुनेटली मिल गया. इट्स अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट, मरिम्बा, बट नॉट द ट्यून्ड मरिम्बा. दिस इज अ लोकल मरिम्बा अवेलेबल इन लोकल मार्केट. जैसे अपने यहाँ पे चोर बाजार में वगैरह मिलता है, उस टाइप का ये इंस्ट्रूमेंट है. तो इसका एक बार थोड़ा साउंड सुनाता हूं तो आपको यू विल बी एबल टू कोरिलेट कैसे होता है. मौसू प्ले. जब अंधेरा होता है, आधी रात के बाद एक चोर निकलता है, काली सी चोर 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 चोर. शहरों की गलियों में जब अंधेरा होता है, आधी रात के बाद एक चोर निकलता है, काली सी सड़क पे ये चोर 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 चोर. शहरों की गलियों में जब अंधेरा होता है, आधी रात के बाद. So that was पंचम in his 70s. एक फिल्म है, फिल्म थी रिक्शा वाला. Coincidentally, it was the first adult movie of Neetu Singh. Now, when I say adult movie, means movie was not adult. Neetu Singh was adult those days. So, उसने पहले भी बहुत सारे बच्चों के काम किए थे, but
as an adult, she came first time. That's why I'm saying Rickshawala was Neetu Singh's adult film. तो इसमें बहुत सारे अनकॉमन गाने हैं. ये गाना बिल्कुल ही पॉपुलर नहीं है. I love it because it has a perfect Arabic style. और एक पंचम मैजिक के शो में साने साहब आए थे तबला बजाने वाले पंचम दा के साथ में, प्रमोद साने साहब. उन्होंने कहा कि ये पिकअप सुन के ही मैं पंचम का पागल हो गया था, मारुति राव का पागल हो गया था. तो पिकअप भी हम लोग सुनेंगे. ये प्रोग्राम का और एक छोटा सा, आई थिंक हिमांशु एंड ऑल अदर्स विल आल्सो अग्री दैट जो गाने हमें नॉर्मली सुनने को नहीं मिलते हैं, या फिर हमें किसी को पता ही नहीं है गाने अच्छे इतने हैं, हम लोग वही गाने सुनते हैं, अमर प्रेम कटी पतंग, ये वो, यादों के बारात, खत्म. पंचम वहां खत्म नहीं होता. पंचम शुरू हो जाता है ये गानों से. सो आई हैव पर्पसली केप्ट, आई नो मोस्ट ऑफ यू मस्ट नॉट हैव हर्ड दिस सॉन्ग, बट इट इज वर्थ लिसनिंग टू दिस सॉन्ग, क्योंकि इसमें आशा जी ने इतना अरेबिक स्टाइल, जो खतूबा का जो फील है वो आपको ये गाने में मिल जाएगा. टिपिकल अरेबिक टाइप गाना है. एंड मैं गजब की चीजों, पिकअप जरूर सुनिएगा. This was a slightly a different odd song for, I mean, not a popular, not odd, but not a popular form. Yeah, Ankush Dada, it was great. Yes. You kept this song. This yes. Really a treat to listen. I'm sure many of the Adbhut Pancham group would love this, and they can put on the chat. How was this song? Pancham ने बोलते हैं Pancham was a Western style. Pancham was a Western style music director, but he created classical songs in camouflage manner. गाना सुन के हमें पता नहीं चलेगा कि गाना क्लासिकल है. पहले के जमाने में ऐसा था कि क्लासिकल मतलब नौशाद साहब से तबला और हारमोनियम और सतार और तंबोरा बजाएंगे. पंचम से छोड़ो यार, ये सब छोड़ दो, मेरे अपने स्टाइल में गाना बनाने दो. गाना क्लासिकल होगा,
but nobody will understand. ऐसे ही गाना था फिल्म अनामिका में, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए. Now this was based on classical rag called Kirwani. Now Kirwani, perfect Kirwani राग है इसमें. तो बेसिकली स्टोरी ऐसे है कि ये गाना जब बंगाली में बन रहा था, तो बंगाली में मोनी पोड़े रूबी रॉय इज द ओरिजिनल दिस थिंग. तो उसका एक छोटा सा स्टोरी ऐसा है कि सचिन भौमिक जो है पंचम के दोस्त थे, सो स्टोरी राइटर, तो ही यूज्ड टू लव लेडी और अ गर्ल कॉल्ड छोबी रॉय. तो उन्होंने बोला, अरे पंचम तू इसके लिए गाना बना ना, छोबी रॉय के लिए. बोला मैं बनाता हूँ, मैं गाऊंगा भी, गाना तू लिखेगा. सो सचिन भौमिक रोट दिस पर्टिकुलर सॉन्ग. ओनली थिंग, छोबी रॉय शुड नॉट फील बैड, इसके लिए उसका रूबी रॉय किया था. सो एंड दिस सॉन्ग बिकेम अ सुपर हिट पॉपुलर इन बंगाल. आज भी अगर कोई भी कॉलेज डे है या कोई भी कॉलेज का फंक्शन है, at least there will be one or two people who will sing this song. और बंगाली जो सारेगामा होता है उसमें एक आदमी आके गाएगा ही मोनी पोड़े रूबी रॉय. So I have tried to club both the songs. First the Pancham's voice, Moni Pode Ruby Roy in Bengali, and then Kishore Das voice for Sanju Kumar, which was from the film Anamika. So let's listen to this. মনে পড়ে রুবি রায়, মনে পড়ে রুবি রায় কবিতায় তোমাকে একদিন কত করে ডেকেছি. আজ হায় রুবি রায় ডেকে বলো আমাকে, তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি. মনে পড়ে রুবি রায় কবিতায় তোমাকে একদিন কত করে ডেকেছি. আজ হায় রুবি রায় ডেকে বলো আমাকে, তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি. मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के. जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से. मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के. जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से. मेरी भीगी भीगी सी. So that was Rag Kirwani. पंचमदा के साथ में बहुत लिरिसिस्ट ने सबसे ज्यादा काम, ऑफ कोर्स आनंद बख्शी, गुलशन बावरा, मजरू साहब, ये तो तीन उनके फेवरेट थे. बट देयर इज वन मोर ग्रेट पोएट हु वर्क वेरी क्लोजली विद पंचम एंड possibly has given all the super hits for Pancham. That was Sahil Ludhianvi साहब. आ गले लग जा, मनमोहन देसाई की डायरेक्शन वाली फिल्म थी ये, एक नडियाड वाला की फिल्म. ना कोई दिल में समाया जो गाना है, विच इज फ्रॉम आग लग जा. आग लग जा के सब गाने बहुत ही पॉपुलर है. आई हैव स्पेसिफिकली चोजन दिस बिकॉज आई वांट टू आल्सो एम्फसिस ऑन दिस, दैट हाउ पंचम यूज्ड टू क्रिएट Bengali songs earlier, try in his own voice, try it in Bengali market, and then use it in Hindi. ये हिंदी में किशोर कुमार के यॉडलिंग का परफेक्ट यूज है. किशोर कुमार ग्रेट यॉडलिंग हैज बीन यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर थिंग, बट नेवरदलेस पंचम ने भी यॉडलिंग किया हुआ है, एंड दैट
जैसे मैंने पहले भी कहा था, जैसे शू 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 होता है या पहले गाने में, तो इसमें जानती हो that word actually is a link, is a bridge to the song. और उसी का बंगाली वर्जन में आज भी ना वो that question है, it's a question, गाने में क्वेश्चन नहीं होता है ऐसे. So दोनों गानों में वो फील है क्वेश्चन का. तो दोनों सुनेंगे, पहले पंचम की आवाज में, then we will listen to किशोर दा. তোমার কথা নিয়ে আমি কত কবিতা লিখেছি, যদি এসে শোনো তুমি ও মনা মনা, হাসবে না তো? তোমার কথা নিয়ে আমি কত কবিতা লিখেছি, যদি এসে শোনো তুমি ও মনা মনা। जानती हो ना कोई दिल में समाया, ना कोई पहलू में आया, जाके भी पास रही तुम ही हो जाने जा, जाने मन। जानती हो कुछ ऐब होगा, क्यों तुम पे तोहमत लगाऊं, मैं तो यही कहूँगा, पूछोगी जब भी जाके भी पास रही तुम ही हो जाने जा, जाने मन। जानती हो. So, question and song ends with question again. पंचम दा, उसको एक्चुअली उनको नाम देना चाहिए था डॉक्टर आर डी बर्मन, क्योंकि इतना उन्होंने कुछ ट्राई किया है नया. जैसे अभी वो कोरोना का कुछ एंटीडोट निकाल रहे, वैसे उन्होंने क्या क्या रिसर्च करके क्या किया है, व्हाट ऑल ही हैज ट्राइड. अब एक इंस्ट्रूमेंट है गिटार, जो सीधी तरह से एक स्ट्राइकर लेके बजाते हैं. अब एक ब्रिज होता है, ब्रिज के आगे हम लोग बजाते हैं, ब्रिज के पीछे अगर बजाएंगे तो क्या आवाज आएगा, ये भी लोगों को सुना है उन्होंने. सो एक स्कूल के जमाने में हम लोग एक रबर बैंड लगा के टेबल को, उसके ऊपर ऐसा कुछ एक मैच बॉक्स वगैरह रख के करके आवाज निकालते थे. वो भी उन्होंने ट्राई किया, एंड दैट टू विद कॉर्ड्स. सो great scientific research which has been done by R.D. Burman कि गिटार के वो साइड में बज सकता है जहां पे नहीं बजाना चाहिए. और वो उससे क्या होता है, नवकेतन की एक फिल्म आई थी 73 में, शरीफ बदमाश. शरीफ बदमाश में देवानंद एज यूजुअल नॉर्मली वो भागता रहता है, बट ये गाने में वो बोट में लाउड स्पीकर लेके पीछे पड़ा है हीरोइन के. सो दैट वाज समथिंग डिफरेंट. तो गाने में ये एक और एक डिफरेंस है कि देवानंद नॉर्मली भागने की जगह पे बोट में जा रहा है. तो ये देखिए क्या कैसे किया. एंड देन आई थिंक 72-73 वाज द ईयर जहां पे बहुत सारे गानों में एको बहुत ज्यादा आता है. आई डोंट नो क्यों, वो मिस्टेक थी या पर्पसली किया था या उस दिन वो सालों का स्टाइल था, बट सभी गानों में स्पेशली इन दिस शरीफ बदमाश के सभी गानों में बहुत सारा एको है. तो वी विल लिसन टू दिस सॉन्ग तेरे सौ दीवाने विद द गिटार. ब्रिज के ये साइड कैसे बजता है, इट स्टार्ट्स विद दैट. चलो.
परवाने हो तेरे 100 दीवाने, झूठे परवाने हो एक तेरा सच्चा आशिक हूँ मैं। माने या तू ना माने रे तेरे 100 दीवाने, झूठे परवाने। छोड़ जाएंगे दिल तोड़ जाएंगे ये बेकदर यार मुश्किल में। छोड़ जाएंगे दिल तोड़ जाएंगे ये बेकदर यार मुश्किल में। इन पे ना कर यकीन हो न जाए कहीं, रास्ते हैं अनजाने। माने या तू ना माने रे तेरे 100 दीवाने, झूठे परवाने। तो ये गिटार का फनी साउंड हमने सुना था। उसी साल में देवानंद की और एक फिल्म थी which was actually made by त्रिमूर्ति फिल्म्स and यश चोपड़ा साहब डायरेक्टर थे उसके। फिल्म थी जोशीला। वंस अगेन साहिर लुधियानवी साहब जिन्होंने गाने लिखे थे। इसमें भी बहुत सारे सुपरहिट गाने हैं, बट मैं एक बात कहना चाहता हूं साहिर साहब के लिए, क्योंकि ये वर्ड मैंने आज तक कभी कोई भी फिल्म गाने में नहीं सुना है। बोलते सोना मिले तो लोग आजकल दिल को कभी ना ले, प्रीत के मुंह पर काली के मल दे, प्यार को ठोकर दे, ओ सरफिरे, ओ सरफिरे। सरफिरे ये वर्ड आता है गाने में। आई डोंट थिंक किसी ने यूज किया होगा ये वर्ड सरफिरे। एंड शायद आप लोगों ने गाना सुना है बट माइट नॉट हैव रियलाइज कि सरफिरा ये वर्ड यूज किया है गाने में। अच्छा, ये गाने में और एक खूबी है, आशा जी का गाया कोरस है, इसमें ग्लास बजा है, ग्लास। तो ऐसा नहीं कि शोले में ही बजा था या इसमें ही बजा था, यादों की बारात में। आई थिंक दिस वाज द ट्रायल। तो ये साउंड आपको आएगा। आई विल ट्राई टू प्ले अलोंग विद द सॉन्ग, तो आपको इमीडिएटली फील हो जाएगा। हिमांशु प्ले। ये रूपा ले जा रे, मुझे तो दिल दे जा, मुझे तो दिल दे जा। हाँ, सोना मिले तो लोग आजकल दिल को कभी न ले, प्रीत के मुंह पर काली खमल दे, प्यार को ठोकर दे, ओ सखी अब है जमाना दूसरा। ये रूपा ले जा रे, मुझे तो दिल दे जा, मुझे तो दिल दे जा। हाँ, सोना मिले तो लोग आजकल दिल को कभी न ले, प्रीत के मुंह पर काली खमल दे, प्यार को ठोकर दे, ओ सखी अब है जमाना दूसरा।
सपने कभी न बुनना, लुट जाएगी ओ सनगी। अब है जमाना दूसरा, सोना रे, सोना रा, सोना रा रे, ये सोना ले जा रे, ये रूपा ले जा रे, मुझे तो दिल दे जा, मुझे तो दिल दे जा, ला 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 सोना सोना रे। So that was a song which uses the word surfire. We are coming to the last song of this evening. Nadir Hussein's film in 70s was super hit, was Yadon Ki Barat. Of course, everything is too good in Yadon Ki Barat. एक गाना जो था जिसमें पंचम की आवाज थी, वंस अगेन जैसे मैंने बोला भूपी जी का यूज जो हुआ था ऑब्लिगाटोस, वैसे पंचम ने अपने ही आवाज का यूज ऑब्लिगाटोस करके किया है, एंड ही इज सिंपली टू गुड. गाने के एंड में आई थिंक ही केप्ट द रिकॉर्डिंग ऑन सो दैट ऑल द क्राउड एंड यू नो लाइक जितने भी लोग हैं वो सब आपस में बात करे, वो भी रिकॉर्ड हुआ है, एंड दैट वाज द टू गुड इफेक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर सॉन्ग. सो ये गाना जो है वो आपके कमरे में के बाद में शुरू होता है. सो आई हैव ओनली केप्ट दैट पर्टिकुलर सॉन्ग कि इसमें आशा जी, किशोर, पंचम, एंड देन द सॉन्ग समझ में नहीं आता कहाँ से कहाँ दिल मिल गए. और अच्छा इसमें भी एक वर्ड है जहां में कबू कबू, तो मैं सोच रहा है कबू कबू क्या है, मतलब कभी कभी ठीक है, कबू कबू कहाँ से आया. तो व्हेन आई स्पोक टू सन ऑफ अपने मजरूर साहब, तो उन्होंने बोला कि ये एक्चुअली उर्दू में वर्ड है, कभी कभी का ही इक्विवेलेंट है, बट कबू कबू इज द वर्ड, तो गलत नहीं है. सो लेट्स लिसन टू दिस एंड गाना कहाँ से कहाँ दिल मिल गए से कहाँ दम और दम पे कब चला जाता है, कहीं से चला जाता है, इज अ वंडर. दिस इज अ वंडर. एंड लिसन टू पंचम्स वे ऑफ सपोर्टिंग द सॉन्ग. चलिए. दिल मिल गए तो हम खिल गए कि दिल दिल मिले जहां में कबू कबू. अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ. दिल मिल गए तो हम खिल गए कि दिल दिल मिले जहां में कबू कबू. अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ.
that's all from my side today's evening. Thank you everyone, and also Himanshu and Kishore for great evening and best support. Thank you. Himanshu, you want to say something about? Yeah, Ankush, I just wanted to say, especially about you are there, Maddie is there, a lot of people are there. I think Sunil Dada is there, Sushant is there, all you guys, and there are many other people who must have lived that era of 70s, and experienced. तो मेरे को तो ये सरप्राइज होता है कि इतना डिस्ट्रैक्शन था, हर सेकंड फिल्म पंचम दा की आ रही थी, हर पिक्चर हिट हो रहा था, सब गाने हिट हो रहे थे। तो तुम लोग ये पढ़ाई लिखाई कैसा किए, सब इंजीनियर वगैरह कैसा बन गए तुम लोग? So it's really, matlab 70s is rocking. Panchamda was rocking and superb songs. Hopefully, in this month only, we will try to also do another program selecting other 2 years of 70s. Maybe look at something later in 70s, and we will let you know once we finalize. But thank you everybody for joining. It's been a month, but itna gap ke baad sab jan aaye and everybody enjoyed. Thank you so much. Okay, so that's it for today evening. See you guys soon. Thank you. Bye.